ہی نہیں۔ وہ جو قرآن میں ذکر ہے نا کہ جب پنڈلی سے پنڈلی مل گئی، موت کا وقت آ گیا، تو پنڈلی کو ساق کہتے ہیں۔ تو یہ جو مارکہ ساق ہے کہ جس ٹائم آپ مرے ہیں، لوگ اس کو سمجھے ہی نہیں وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ روح کو بدن سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، فرشتے کو جانور سے علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ جو خاک ہے، وہ جو جسم ہے، وہ مٹی میں دبا دیا جائے گا، اور وہ جو روح ہے وہ اپنے انجام کی طرف چلی جائے گی۔ تو اگر اس روح نے انفس کا سفر ٹھیک طریقے سے کیا تو وہ تو ایک طرح سے پنجرے سے آزاد ہو رہی ہوتی، وہ پنجرے سے آزاد ہوگی اور آفاقی سفروں کے اوپر نکل جائے گی، اور یہ عرضی سوال، یہ بے معنی سوال، یہ مٹیریلسٹک سوال، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے، زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ آپ ایک انٹر گلیکٹیکل ٹریول کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ فائنلی وہ اسپیشی بن جائیں گے جو ایک اسپرچل جرنی کے اوپر نہیں تھا بلکہ ایک ہیومن جرنی کے اوپر تھا، کیونکہ ہم سارے لوگ باتیں کرتے ہیں زندگی میں کہ ہم ایک اسپرچل جرنی سے گزرے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہیں ہی اسپرٹس، ہم تو ہیں ہی روحیں، ویئر آن اے ہیومن جرنی ہے۔ تو اس زندگی کے ساتھ وہ ہیومن جرنی ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق میں سے ایک غزل مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ غزل بنیادی طور پر ایک مسلسل غزل ہے۔ آپ لوگ جو اصطلاحات سے واقف ہیں شاعری کی، وہ جانتے ہیں کہ غزل کے اندر ہر شعر اپنا ایک انفرادی معنی رکھتا ہے اور اس کا دوسرے شعر کے ساتھ معنی کی حیثیت میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ قافیہ اور ردیف کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور بندھے ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ ضرور بندھے ہوتے ہیں، ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، لیکن معنی ان کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن جو مسلسل غزل ہے اس میں ہم ایک تھیم کو، ایک آئیڈیا کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہر شعر ابھی اپنا علیحدہ علیحدہ معنی رکھتا ہے، لیکن تمام اشعار ایک ہی لڑی میں پروئے ہوتے ہیں، ایک ہی معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غزل ہے اس کا ردیف ہے زندگی کے ساتھ۔ اس کو آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس ٹرانس میں چلے جائیں کہ گویا جیسے آپ کو پتہ چلے کہ اب زندگی ختم ہونے لگی ہے، زندگی کا آخری دن ہے، زندگی کے آخری گھنٹے ہیں، زندگی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ تو اس وقت ایک انسان کیسا محسوس کرے گا، اور جو اس کی لائف کی جرنی ہے وہ اس کے اوپر بھی ریفلیکٹ کر رہا ہوگا، اور وہ کیا پا رہا ہے، کیا کھو رہا ہے، وہ بھی اس وقت جان رہا ہوگا۔ تو اس تناظر میں اگر آپ اس کو سنیں گے تو اس کو بہتر سمجھ پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حزن و ملال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ، حزن و ملال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ، رنج و وبال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ۔ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو آپ کو اپنی ذات کے متعلق نہیں ہوتا، بلکہ اپنے گرد و نواح کے متعلق، کسی اور شخص کے متعلق محسوس کرتے ہیں آپ اس غم کو۔ اور ملال وہ ہوتا ہے جو آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں ایک بڑی لطیف سی بات مجھے یاد آ گئی، اس کا اس سے غزل سے تو تعلق نہیں ہے، کہ قرآن کریم کے اندر جہاں پر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پناہ لیے ہوئے تھے غار کے اندر، اور کفار مکہ غار کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مکڑی کو حکم دیا کہ وہ جالا لگا دے، اور اسی طریقے سے وہاں پر پرندہ انڈے دے گیا۔ تو اس موقع کے اوپر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم محسوس کیا کہ ہم پکڑے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ حزن کا لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملال میں نہیں تھے، اپنی ذات کی پریشانی میں نہیں تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فکر مند تھے۔ اگر ملال کا ذکر کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ خود پریشان تھے، وہ اپنی ذات کو لے کے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ لیکن کتنا لطیف اللہ نے لفظ استعمال کی ہے، حزن، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے بارے میں فکر رکھتے تھے۔ بہرحال یہ ایک دماغ میں بات آ گئی، آپ کو بتا دی۔ حزن و ملال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ، کہ جو حزن تھے زندگی کے، جو تکلیفیں تھیں اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کو دیکھ کے، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے معاشرے کے بارے میں، زندگی ختم ہوئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ جو ملال تھے، جو اپنی ذات کے ریگریٹس تھے، جو افسوس تھے کہ زندگی میں کیا کیا، کیوں کیا، کیا کھائے پایا، کیا کھویا، کیا ملا کیا نہیں ملا، وہ بھی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ زندگی کا ایک تماشا ہے، یہ ہماری آخری سانس تک چلتا ہے۔
हम मर जाते हैं, मट्टी हो जाते हैं, लोग हमें कब्र में जाके दफना देते हैं। ना हमारे हुज़्न कहीं रहते हैं, ना हमारे मलाल कहीं रहते हैं। रंजो-वबाल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ, रंज भी ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी में हम किसी चीज़ का जितना भी रंज मनाएँ, जितना भी गम करें, फिर हमें उठा के लहद के सुपुर्द कर दिया जाता है। हमारे सारे रंज इधर ही रह जाते हैं। वबाल भी सारे इधर ही रह जाते हैं। वो सारे वबाल जो हमारे हमने बीमारियों की सूरत में देखे होते हैं, वो सारे वबाल जो हमने मुआशी मसाइल की सूरत में देखे होते हैं, जो रिश्तों के साथ देखे होते हैं। तो बेसिकली ये ज़िंदगी की डोर से बंधे हुए जज़्बे हैं। हुज़्न, मलाल, रंज, वबाल ये सब ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी के साथ ये सब ज़िंदगी का तमाशा है। ये मताए गुरूर है ये सब कुछ। और है कि मालो मताए उम्र गुज़िश्ता से मुंसलिक, मालो मताए उम्र गुज़िश्ता से मुंसलिक सारे सवाल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। जो आपने माल कमाया होता है ज़िंदगी में या कमाने की ख़्वाहिश होती है या जो आप अपने पास नेट वर्थ देखना चाह रहे होते हैं या जो आप अपनी मंथली इनकम देखना चाह रहे होते हैं या जो मताए उम्र आपने हासिल की होती है, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में हो कि मैंने ये घर बना लिया या दुकान बना ली या प्लाज़ा प्लाज़ा ले लिया और चाहे वो मता हो जो फाइनेंशियल मता नहीं है, आपकी औलाद है, आपके रिश्ते हैं, आपका ओहदा है, आपका स्टेटस है, आपका सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस है। जो भी आपने मता इस दुनिया की बनाई होती है, तो वो तो उम्र गुज़िश्ता से मुंसलिक होती है, वो उम्र तो गुज़र गई, अगर आप मर रहे हैं, अगर आप ख़त्म हो रहे हैं, तो वो मालो मताए उम्र गुज़िश्ता से मुंसलिक है। वो आपके साथ आगे कब्र में तो जा नहीं रही। तो हर वो चीज़ जो गुज़रती उम्र के साथ, उम्र गुज़िश्ता के साथ खुद भी एक माज़ी का हिस्सा बन जाएगी, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि मालो मताए उम्र गुज़िश्ता से मुंसलिक सारे सवाल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। मुझे याद है हमारे एक रिलेटिव थे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो हर वक़्त सदमे में रहते थे, उनके पार्टनर ने उनके साथ कोई फ्रॉड कर दिया था, हर वक़्त उसके बारे में बात करते रहते थे। ज़हनी तौर पर भी किसी हद तक अ, अपनी सही कैफ़ियत में नहीं रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक गम के बारे में सुबह-शाम बात करते रहते थे कि मेरा पैसा नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बच्चे समझाते थे कि जी छोड़ें, ख़त्म करें इस बात को, हम सब सेटल हैं लाइफ़ के साथ। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साँस तक उसके बारे में बात करते रहे। बस वो जैसे ही उनकी साँस उखड़ी, उनको कब्र में दफ़नाया गया, उसके बाद कभी किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। वो रकम शायद इतनी बड़ी थी ही नहीं कि बच्चे उसके पीछे जाते, सोचते उसके बारे में। वो सारे सवाल बस उनकी ज़िंदगी के साथ थे, उनकी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म हो गए। तो हमने भी जो मालो-मता कमाई होती है, वो सारी मताए गुरूर ही होती है, उम्र गुज़िश्ता से मुंसलिक होती है। उम्र गुज़िश्ता का इख्तिताम आता है, मौत आती है और उसके बाद हमारे सवाल फ़र्क हो जाते हैं, फिर हमने कब्र में कुछ और सवालों का जवाब देना होता है। फिर वहाँ से हमारे इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें किस वाली दुनिया की तरफ भेजा जाएगा। मुख्तलिफ सवालों की तरफ हम चल पड़ते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो ये साँस का खेल है, जो सवाल हमने पाले हुए हैं। और फिर है कि वो जोशे अहद बाक़पनो सोचे वस्ते उम्र, वो जोशे अहद बाक़पनो सोचे वस्ते उम्र, ख़्वाबो-ख़याल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। जो अहद बाक़पन होता है, जो नौजवानी होती है, उसके अंदर एक जोश होता है, जोशे अहद बाक़पन, जो आपने नौजवानी के अंदर लेट टीन्स में, अर्ली 20s में, मिड 20s में, वो एक बाँकपन होता है आपके अंदर, एक अहद होता है पूरा जिसके अंदर आपके अंदर जवानी होती है, आपके अंदर वो जज़्बे होते हैं, आपके अंदर वो हार्मोनल चेंजेज़ होती हैं, आपके जिस्म में वो स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर एक जोश होता है और उस जोश के अंदर आप ख्वाब पालते हैं। वो ख्वाब मोहब्बत के ख्वाब भी हो सकते हैं, वो ख्वाब करियर के ख्वाब भी हो सकते हैं, वो दुनिया को किसी तरीके से तस्ख़ीर कर लेने के ख्वाब भी होते हैं। लेकिन एक वक़्त होता है अहद बाक़पन का जिसके जोश में आप बड़े-बड़े ख्वाब देखते हैं। उसके बाद ज़िंदगी का एक और मोड़ आता है जो वस्त उम्र का है, जब सूरज निस्फ़ नहार से आगे गुज़र जाता है। आपको पता लग जाता है कि ज़िंदगी के दिन में आधे से ज़्यादा सूरज ढल चुका है। अब मैं जितनी ज़िंदगी गुज़ार चुका हूँ, उससे कम ज़िंदगी रह गई है। उसमें फिर वस्त उम्र में सोच हावी हो जाती है। वो जोश उस तरीके से नहीं रहता, वो जज़्बे उस तरीके से नहीं रहते, वो बाँकपन नहीं आपके अंदर होता, लेकिन आप चीज़ों की डेप्थ में जाना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं, आप एनालाइज़ करना चाहते हैं, ज़िंदगी की मानवियत को समझना चाहते हैं, मकसदियत को समझना चाहते हैं। एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आपको तंग करते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ जाऊँ? इसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप रिलीजियस थिंकर हो,
ये एक बड़ी मशहूर टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है, मिड लाइफ कैरियर क्राइसिस। ये ज़्यादातर लोगों को 38 साल, 40 साल की उम्र में होती है। अब कैरियर फ़ास्ट हो गए हैं तो समटाइम्स लोग 35-36 साल की उम्र में भी फ़ील करते हैं कि आपने कैरियर आगाज़ कर लिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल उस पे लगा लिए और फिर आपको लगता है कि ये मैं अपनी ज़िंदगी किस चीज़ पे ज़ाया कर रहा हूँ। देखने वाले को लग रहा होता है कि आप कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन आप मिड लाइफ कैरियर क्राइसिस में होते हैं। आप कहते हैं कि बस वक़्त कम रह गया, मैं वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। आप उस कैरियर को छोड़कर दूसरे कैरियर की तरफ जाने की तरफ बात करते हैं। तो ये भी एक उम्र का अहद होता है, जिसके अंदर सोच, डेप्थ, एनालिसिस, मानवीयत ये हावी हो जाते हैं आपके साथ और इसके अंदर ख़्याल होते हैं। तो एक अहद था अहद बाँकपन जिसके अंदर ख्वाब थे और फिर एक अहद आता है वस्त उम्र का जिसके अंदर सोच और ख़्याल होते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी ख़त्म होती है, तो वो जोश अहद बाँकपन और सोच वस्त उम्र, ख्वाब व ख़्याल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। फिर वो अहद बाँकपन के ख्वाब भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो वस्ते उम्र की जो सोच है और उसके जो ख़्यालात हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़िंदगी के साथ-साथ है, ये जो ज़माना मकान का हमारा इम्तिहान है, उसके मुख्तलिफ़ अदवार हैं, उसके मुख्तलिफ़ अहद हैं। ज़िंदगी तमाम हुई और ना जवानी के सवाल-ओ-जवाब बाकी बचे, ना वस्ते उम्र के सवाल-ओ-जवाब बाकी बचे। महरूमी हयात से तश्कील ज़ात तक, महरूमी हयात से तश्कील ज़ात तक सोचों के जाल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। अब यहाँ ये पिछला जो शेर है, यहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होती है कि कुछ लोग अंदर के सफ़र में निकल जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी डेप्थ इख्तियार कर लेते हैं वस्ते उम्र तक आते-आते, वो ज़िंदगी के मानी को किसी हद तक समझना चाहते हैं। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि महरूमी हयात भी एक ज़िंदगी का दौर था जिसके अंदर मैं क्या नहीं पा सका, मुझे क्या नहीं मिल सका, क्या मैं हासिल नहीं कर सका, उसने आपकी ज़िंदगी को ड्राइव किया। नॉर्मली ज़िंदगी में मकसदियत निकलती ही गम से है। खुशी के अंदर मानवियत और मकसदियत के लिए टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो जो महरूमी हयात है, जो ज़िंदगी की महरूमियाँ हैं, वो इंसान को सिखाती हैं, वहाँ से वो ट्रिगर होता है कि ये ज़िंदगी में कुछ और भी होना चाहिए और उसके बाद वो एक तश्कील ज़ात के सफ़र पे निकलता है। वो अपनी ज़ात को तश्कील करता है, वो अंदर के सफ़र पे निकलता है, वो अपने क़ल्ब को समझता है, वो नफ़्स अम्मारा को, नफ़्स मुतमइन्ना को, नफ़्स लवामा को समझता है। वो मादी ज़िंदगी के लताइफ़ को समझता है, वो रूहानी और बातिनी ज़िंदगी के लताइफ़ को समझता है। वो जानने की कोशिश करता है कि जो नज़र आ रहा है, जो हकीकत है, क्या वो हकीकत है? या जो नज़र नहीं आ रहा और बिल्कुल गैर मरई है लेकिन उसके बारे में इशारे दिए गए हैं, वो हकीकत है? तो ये एक सिलसिला है, सोचों के एक जाल बस बिल्ड होता है जो महरूमी हयात से लेके तश्कील-ए-ज़ात तक चलता है। आपने क्या खोया और क्या पाया से चलते हैं और आपने कैसे अपनी ज़ात को रीज़ा-रीज़ा करके, उसके टुकड़े-टुकड़े करके, उन किरशियों को दोबारा किसी तरीके से जोड़कर अपनी ज़ात की तश्कील की, वहाँ तक जाता है। और इसमें मुसलसल सोचों का एक जाल बुनता चला जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि लहद में जाके वो भी ख़त्म हो जाता है। लहद के अंदर आप चले जाएँ, अभी मॉडल टाउन कब्रिस्तान में चले जाएँ, आपको फैज़ अहमद फैज़ की कब्र भी नज़र आएगी और 4 कब्रें आप क्रॉस करेंगे, तो आपको किसी अनपढ़ मूछी की कब्र भी नज़र आ जाएगी। दोनों मट्टी हो गए हैं, दोनों वहीं पर लेटे हुए हैं। आगे जो लेके गए हैं वो कुछ और ही है। उसका इस महरूमी हयात से कोई ताल्लुक नहीं है, जो तश्कील-ए-ज़ात आपने की है उसके साथ एक ताल्लुक है। और वो सारे उसके नतीजे में जो सोचों के जाल आपके बिल्ड हुए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। अब आप जो ले जा सकते थे, आप ले गए हैं। वो तश्कील-ए-ज़ात आपने की थी, तो वो साथ ले गए हैं। नई तश्कील-ए-ज़ात करके लेके गए थे, तो उसको भी साथ ले गए हैं। आपके पास मादी तौर पर कुछ भी नहीं बचा। सोचें ख़त्म हो चुकी हैं, सोचों के वो जाल ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ़ मुकाफ़ात अमल है। और है कि कुछ दर्द, कुछ मुक़ाम, कई लोग और तुम। कुछ दर्द, कुछ मुक़ाम, कई लोग और तुम। सब खाल-खाल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। कुछ दर्द होते हैं जो ज़िंदगी में आपको थोड़ी देर रुलाते हैं, कुछ दर्द होते हैं जो ज़िंदगी भर आपके रगो-पैं में उतर जाते हैं, आपकी हड्डियों में उतर जाते हैं। वो आखिरी साँस तक आपके साथ होते हैं, वो दर्द ख़त्म नहीं होते। वो दर्द आपको सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देता रहता है। कुछ मुकाम ऐसे होते हैं ज़िंदगी के, वो कुछ जगहें भी हो सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी प्यारी थी और वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। आप चाहे हिजरत कर जाएँ, किसी और मुल्क चले जाएँ, वो जगह नहीं आपको भूलती। जैसे मेरे दादा 1947 में मशरकी पंजाब में मोगा एक शहर है,
قصور سے اگر لاہور سے قصور جائیں اور قصور سے آگے فیروزپور کی طرف جائیں بارڈر کراس کر کے، تو فیروزپور سے پہلے ہی موگا شہر آ جاتا ہے دائیں طرف، تو پھر وہ قریب ہے، لیکن وہ ہجرت کر کے آ گئے، خانیوال میں شفٹ ہو گئے۔ ان کو ساری زندگی موگا کی یاد رہی۔ وہ حکیم تھے لیکن انہوں نے ایون اپنے مطب کے باہر بھی حکیم ظہور احمد اور نیچے آف موگا لکھا ہوا تھا۔ ان کے اندر سے موگا نہیں نکلتا تھا، وہ مقام ان کے اندر سے نہیں نکلتا تھا، حالانکہ ان کی 1994 میں ڈیتھ ہوئی ہے، 47 برس بعد ہجرت کے۔ میرے والد نے جب ہجرت کی تو وہ صرف 7 برس کے تھے، لیکن وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ ایک دفعہ انڈیا جا کے موگا اپنا شہر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا وہ گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کچھ مقام آپ کی زندگی سے کبھی نہیں نکلتے۔ اسی طریقے سے کچھ وہ مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں جو فزیکل مقامات تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کی زندگی کا کوئی مقام ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا کوئی موڑ ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ گزرا ہوا، کسی اچیومنٹ میں گزرا ہوا، کسی فائدے نقصان میں گزرا ہوا، جو کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی آپ کی زندگی میں آ کے فوراً چلا جاتا ہے، کوئی آپ کی زندگی میں آتا ہے بہت دیر گزارتا ہے پھر جاتا ہے، اور تم یہ جس شخص سے آپ کو محبت ہے، جس شخص کو آپ خاص طور پہ ایکسکلوسیولی بات کر رہے ہیں، کہ تمہیں میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں کہ درد بھی تھے، مقام بھی تھے، لوگ بھی تھے، لیکن نہ تم ان دردوں میں تھے، نہ ان مقاموں میں تھے، نہ ایون ان لوگوں میں تھے۔ تم ایک علیحدہ ہستی کے طور پر میرے پاس تھے۔ میں تمہیں لوگوں میں شمار نہیں کرتا، تم اس سے بلند ہو، تم اس سے ماورا ہو، تم ایک اسپیشل آدمی ہو۔ سب خال خال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ، وہ درد بھی ختم ہو جاتے ہیں جیسے ہی موت آتی ہے، وہ سارے درد جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ختم ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ مقام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے دادا کو موگا تھا، یاد تھا، اور اس میں کیا یاد تھا وہ ان کے ساتھ چلا گیا، میں نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ میرے والد کو جو یاد ہے وہ کسی حد تک مجھے معلوم ضرور ہے، کیونکہ والد نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں کیا کیا یاد ہے، کیسی کیسی باتیں ہیں، لیکن میں اس کو اسی طریقے سے نہیں جانتا جیسے وہ جانتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے ساتھ اس چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ میری زندگی کے اندر کچھ اور مقام ہوں گے، میری زندگیوں کے ساتھ انہوں نے ختم ہو جانا ہے، میرے بچے ان کو نہیں سمجھتے ہوئے۔ جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے میری آخری سانس آئے گی اور وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ خال خال ختم ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اور تم اگر تم کوئی اسپیشل شخص ہو میری زندگی میں تو بالآخر تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ یہ سب زندگی کے میلے ہیں، یہ سارا زندگی کا کھیل ہے، خال خال ایک ایک کر کے یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ درد، مقام، لوگ اور آپ کا محبوب، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اس کے بعد ہے کہ خاکی مکاں ہے جس میں اندھیرے کا راج ہے، خاکی مکاں ہے جس میں اندھیرے کا راج ہے، رنگ و جمال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ۔ جس لحد میں ہمیں اتار دیا جاتا ہے، مٹی کی بنی ہوئی لحد ہوتی ہے، آپ کے نیچے بھی مٹی ہوتی ہے، دائیں بائیں سرہانے پہ، پائنتی پہ مٹی ہی مٹی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر سلیبیں ڈال دی جاتی ہیں، یا بغلی کا پر ہے تو اس کو سائڈ سے بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر گھپ اندھیرا ہوتا ہے، اس کے اندر جگنو بھی نہیں ہوتا۔ ایک خاکی مکان آپ کی قبر ہے جس کے اندر آپ نے آخر میں جانا ہے، تو خاکی مکان ہے جس میں اندھیرے کا راج ہے، رنگ و جمال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ۔ یہ جو رنگ ہم نے پالے ہوتے ہیں، یہ میں بھی اپنے لان میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھیں کتنا سبزہ ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پرندے یہاں اترتے ہیں، خوش شمال پرندے، طرح طرح کے پھول میں نے لگانے کی کوشش کی ہے کہ خوبصورت پھول ہوں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ زندگی کا میلہ ہے، ان سب رنگ و جمال نے ختم ہو جانا ہے۔ رات ہوتی ہے تو ہم روشنیاں جلا دیتے ہیں اپنے گھروں میں، باہر برآمدوں کی روشنی بھی جلا دیتے ہیں، دروازے کی روشنی بھی جلا دیتے ہیں، روشنی میں زندگی گزارنے کے عادی ہیں، رنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ یہ رنگ و زینت، یہ جمال، یہ بس زندگی کا تماشا ہے۔ ہمیں اگر اس کا ادراک ہو جائے کہ آخر میں تو ایک مٹی ہے، ایک خاکی مکان ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے، اس کے اندر اگر کوئی نور اترے گا تو وہ نور وہی ہوگا جو آپ نے آگے بھیجا ہوگا، اس کے اندر اگر کوئی رنگ ہوں گے تو وہ اس کھڑکی سے ہی ہوں گے جو داہنی طرف کھلے گی، اگر وہ نہیں ہوں گے تو نہ وہاں نور ہوگا، نہ وہاں روشنی ہوگی، نہ وہاں رنگ ہوگا۔ تو خاکی مکان ہے جس میں اندھیرے کا راج ہے، رنگ و جمال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ، اور ہے کہ کتنے عروج خاک ہوئے ایک زوال سے، کتنے عروج خاک ہوئے ایک زوال سے، سارے کمال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کی طرف دیکھیں تو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عروج دیکھا ہے۔ میں اپنی زندگی میں پاکستان کے اندر کم از کم
3-4 ऐसे सरबराहान ममलकत देख चुका हूँ, जो ये कहते हुए इस दुनिया से चले गए कि हमारी कुर्सी बड़ी मज़बूत है। कुर्सी सिर्फ़ अल्लाह की मज़बूत है, अल्लाह के अलावा किसी की कुर्सी मज़बूत नहीं है। वो सारे उरूज ख़ाक हो जाते हैं, मट्टी हो जाते हैं, पर उनकी कब्र पर भी कोई नहीं जाता एक सवाल से। एक मौत का सवाल आता है और आधा घंटा भी नहीं गुज़रता तो सक्सेशन प्लान के ऊपर बात होने लग जाती है, आगे कौन सँभालेगा के ऊपर बात होने लग जाती है। मरने वाला बस एक मैयत हो जाता है, जो एक लायबिलिटी होता है किसी तरह उसको 1 दिन के अंदर-अंदर कब्र में उतारा जाए। वो सारे कमाल जो वो कहता है, सारे इख्तियार जो वो कहता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों पे थोड़ा गौर करें तो हमारे अपने साथ भी ऐसे ही है। ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रेज़िडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में ही सोचना है। हम अपनी ज़िंदगी में कैसे-कैसे उरूजों की बात करते हैं, कभी अपने ओहदे की बात करते हैं, कभी पैसे की बात करते हैं, कभी औलाद की बात करते हैं, कभी ज़िंदगी के अचीवमेंट्स की बात करते हैं, कभी अपनी पीएचडी गिनवाते हैं। ये सारा मताए गुरूर है, ये जितने भी उरूज हैं, एक बंदा अपनी ज़िंदगी के 10 उरूज, 20 उरूज गिनवा सकता है। एक ज़वाल की मार होते हैं, एक मौत की मार होते हैं और अगले दिन आपकी कब्र के ऊपर आप कोई पीएचडी नहीं है, आप एक मैयत ही हैं। आप कोई अ, बिलियनेयर नहीं है, आप एक मैयत ही हैं। आप कोई स्कॉलर नहीं है, आप एक मैयत ही हैं। ये मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं मर जाऊँगा एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता हूँगा। अल्लाह भी कहना चाहूँगा तो नहीं कह सकूँगा। ये ज़िंदगी के साथ ही है। ज़िंदगी ख़त्म हुई तो कोई अरूज बाकी नहीं रहता। सारे कमाल ख़त्म हो जाते हैं ज़िंदगी के साथ, एक लम्हे की मार होते हैं। और आखिर में इसका मकता है कि अनफुस का ये सफ़र मिला आफ़ाक से इमाद, अनफुस का ये सफ़र मिला आफ़ाक से इमाद, अर्ज़ी सवाल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। ये जितने शेर मैंने आपको सुनाए हैं, ये आपको लग रहा होगा कि डूम एंड ग्लूम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो आखिरी शेर है, ये आपको बता रहा है कि कुछ है। अनफुस का अगर आपने एक सफ़र किया हो, अंदर का एक सफ़र किया हो, क्योंकि अल्लाह ना आसमानों में समाता है, ना ज़मीनों में, लेकिन क़ल्ब मोमिन के अंदर समा जाता है। अगर आपने अनफुस का एक सफ़र किया हो और अपने अनफुस की कायनात को समझा हो, तो जब आपको मौत आती है, आपके अंदर से रूह निकलती है, तो अगर अल्लाह के फ़रिश्तों ने उस टाइम ये कह दिया, क्या ए नफ्से मुतमइन्ना मैं तुझसे राज़ी और तू मुझसे राज़ी, आ तुझे आफ़ाकों के सफ़र के ऊपर लेकर चलें। तो फिर आपका अनफुस का ये सफ़र लेकर आपकी रूह निकलेगी और आफ़ाक के साथ मिल जाएगी। अर्ज़ी सवाल ख़त्म हुए ज़िंदगी के साथ। फिर ये जो अर्ज़ी सवाल है ना, ये जो आपको दुनिया में रहने की वजह से, बदन आपके साथ लगे होने की वजह से, हैवानी जिबिलत साथ लगे होने की वजह से, जो आपके अर्ज़ी मसले हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाएँगे। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्म ये हो जाएगा कि उसके बाद आपको खाने की तलब नहीं होगी, आपको पानी की तलब नहीं होगी, उसके बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना होगा, उसके बाद आपको लिबास की हाजत नहीं होगी, उसके बाद आपको बच्चों की फ़ीस के बारे में नहीं सोचना होगा, ओहदे के बारे में नहीं सोचना होगा, घर के बारे में नहीं सोचना होगा। फाइनली आप उस मकाम पे पहुँच सकते हैं कि अगर आपने अनफुस का वो सफ़र किया है, तो वो आफ़ाक से मिल जाएगा मौत के टाइम पर। वो मेरा एक और शेर है कि नूर से नूर मिला, खाक मिली खाक से खाक, नूर से नूर मिला और मिली खाक से खाक, लोग इस मार्ग का इस साख को समझे ही नहीं। वो जो कुरान में ज़िक्र है ना कि जब पिंडली से पिंडली मिल गई, मौत का वक़्त आ गया, तो पिंडली को साख कहते हैं। तो ये जो मार्ग का साख है कि जिस टाइम आप मरे हैं, लोग उसको समझे ही नहीं, वो असल में है क्या? वो ये है कि रूह को बदन से अलग किया जा रहा है। फ़रिश्ते को जानवर से अलग किया जा रहा है। वो जो ख़ाक है, वो जो जिस्म है, वो मिट्टी में दबा दिया जाएगा और वो जो रूह है, वो अपने अंजाम की तरफ चली जाएगी। तो अगर उस रूह ने अनफुस का सफ़र ठीक तरीके से किया, तो वो तो एक तरह से पिंजरे से आज़ाद हो रही होती। वो पिंजरे से आज़ाद होगी और आफ़ाक़ी सफ़रों के ऊपर निकल जाएगी और ये अर्ज़ी सवाल, ये बेईमानी सवाल, ये मटीरियलिस्टिक सवाल, ये सब पीछे रह जाएँगे, ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएँगे। आप एक इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल के काबिल हो जाएँगे। आप फाइनली वो स्पीशी बन जाएँगे, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन जर्नी के ऊपर था, क्योंकि हम सारे लोग बातें करते हैं ज़िंदगी में कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुज़रे, हकीकत तो ये है कि हम हैं ही स्पिरिट्स, हम तो हैं ही रूहें। वी आर ऑन अ ह्यूमन जर्नी हियर। तो इस ज़िंदगी के साथ वो ह्यूमन जर्नी ख़त्म हो जाएगी और अगर आपने अपनी रूह को सँभाल के रखा है, तो आफ़ाक का सफ़र आगाज़ हो जाएगा। उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों को समझा सका हूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।